ایک ایسا نبی جس کی موت کے بعد یہودیوں پر سب سے بڑا عذاب آئے، ایسا نبی جسے اللہ نے قرآن میں اپنی روح کہا ہے، جس کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب قائم، ایک ایسا نبی جسے ایسے معجزے دیے گئے تھے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، ایسا نبی جسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور ایک خاص وقت پر دوبارہ اس دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آخر کس طرح اس انسان کو جو لوگوں کو توحید سکھانے آیا تھا اسی کو خدا بنا دیا گیا اور کس طرح بائبل کو چینج کر دیا گیا، چلے جانتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، ان کے اسکالرز کرپٹ ہو چکے تھے اور دنیاوی فائدے کے لیے دین بیچ رہے تھے، انہوں نے پورے دین کو ہی اپنے مطابق بدل دیا تھا۔ اوپر سے اس وقت فلسطین پر رومن امپائر کی حکومت تھی جو کہ یہودیوں پر بہت ظلم کرتی تھی، وہ ان سے بھاری ٹیکس لیتے تھے، ان سب کی حالت بہت خراب تھی۔ لیکن ان کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کا ذکر تھا جو انہیں اس ظلم سے آزاد کرے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ مسیحا کسی پاورفل بادشاہ یا ایک واریر کی شکل میں آئے گا، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ ایک دن ایک پاک دامن نیک عورت کے گھر حضرت جبرائیل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ اس عورت کا نام تھا سیدہ مریم علیہ السلام، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل نے انہیں کہا کہ اللہ ایک عظیم بیٹا دے گا۔ سیدہ مریم کافی حیران ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلی گئی تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی جاتی اور کہتی، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ آواز آتی کہ غم نہ کرو، اور تبھی ان کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا جس سے انہیں حوصلہ ملتا۔ ان سب کے بعد پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے انہیں اس بچے کو تھامے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان پر برے الزام لگانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر سیدہ مریم پریشان ہونے لگی، لیکن تبھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور ان کی گود میں وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا۔ یہ سن کر وہاں سبھی لوگ خاموش ہو گئے اور اس سے سیدہ مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ وہ بچپن سے ہی ایک نیک اور سادہ شریف انسان تھے اور اپنا زیادہ وقت عبادتوں میں گزارتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کی مدد سے انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ اس وقت کے بڑے ٹیچرز کے ساتھ ایسی ڈیبیٹس کرتے تھے کہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے لاز سکھانے لگے جنہیں ان پریسٹ نے بدل دیا تھا۔ جب لوگ ان کی نبوت پر شک کرتے تو وہ انہیں معجزہ دکھاتے۔ وہ اندھوں اور بہروں کو اللہ کی مدد سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کر رکھا ہے، کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا منگوا دے۔ تبھی اللہ نے ان کے لیے آسمان سے ایک شاندار دعوت اتاری اور کہا کہ اگر اب بھی تم لوگ حق سے منہ موڑو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جب اس وقت کے پریسٹ نے یہ سب دیکھا تو وہ جان گئے انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنا کر جو دولت جمع کر رکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کرپشن اور منافقت لوگوں کے سامنے لانا شروع کر، گناہوں اور دنیا کی لذتوں میں پڑ چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہ سب چھوڑنے کا کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان سے اور معجزوں کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں سے بہت غصہ ہوئے۔ تمہارے دل حق کو تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کا یہ مسیحا ایک پاورفل بادشاہ کی صورت میں بڑی فوج لے کر انہیں بچانے آئے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرح ہی ایک عام انسان تھے۔ اس وقت فلسطین بھی رومن امپائر کے انڈر تھا۔ جب رومن امپائر کے بادشاہ نے یہ دیکھا اور لوگ اسے فالو کر رہے ہیں تو یہ ان کی حکومت کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ تھا۔ کئی یہودی پریسٹ رومن امپائر کے پاس گئے اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا یہ انسان بادشاہ بننا چاہتا ہے اور اسی لیے یہ سب کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تبھی انہوں نے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک انسان مجھے دھوکہ دے گا۔ ایسا ہی ہوا، انہی میں سے ایک انسان کچھ پیسوں کے بدلے فوجیوں کو ان کے باغ لے آیا، اور اسی پوائنٹ پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔
दिया और एक सेम उन जैसा इंसान उनके सामने कर दिया, जिसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि ये वही इंसान था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से था और अल्लाह ने इसे इस सब्र के बदले जन्नत का वादा किया था। उसे बाजार में जख्मी हालत में घुमाया और उसे गालियां दी और उसके ऊपर एक लकड़ी का बना क्रॉस लाद दिया। इसके बाद उस क्रॉस पर उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी और उस इंसान को जान से मार दिया गया। इसके बाद आसमान काला पड़ गया और एक खतरनाक जलजला आया। ये उन लोगों के लिए एक निशानी थी आने वाले अजाब की। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया है। अब वो दज्जाल का मुकाबला करने आएंगे। इस इंसान की मौत के बाद इनके साथियों के दरमियान डिस्कशन होने लग गई। इनके कुछ सहाबा ये मानते थे कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया है, जबकि कुछ का कहना था कि वो मर चुके हैं। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहानियां फैलने लगी, जबकि दूसरा फिरका इन्हें शहीद मानता था। इस वक्त तक बाइबल एक बुक की फॉर्म में नहीं आई थी। लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग जुबानी याद थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कई साल बाद जाकर कुरान एक बुक की शक्ल में आया था। लेकिन कुरान और बाइबल में फर्क ये था कि कुरान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने हाथ में ली थी और बाइबल के साथ ऐसा नहीं था। जब 70 ईस्वी में एक इंसान जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इतनी नफरत करता था कि उन्हें टॉर्चर करता और जेलों में डाल दिया करता था, इस इंसान का नाम था सॉल ऑफ टार्सिस। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को टॉर्चर किया क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये फॉलोअर्स एक अल्लाह की इबादत करते थे। इस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन फॉलोअर्स ने बहुत जुल्म सहा किया कि इसने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है। इसने अपनी लाइफ में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं था। इसके बाद इसने अपना नाम चेंज करके पॉल द अपोस्टल रख लिया। इसने ये आइडिया ग्रीक्स और रोमन्स से लिया था, जिनके झूठे खुदाओं के बेटे भी हुआ करते थे, जैसे हराक्लस। इसने इन आइडियाज से अपनी एक अलग ही क्रिश्चियनिटी बना ली, जिसे उस वक्त के लोग एक्सेप्ट करने लगे। तो ये नई टाइप की क्रिश्चियनिटी उन्हें रिलेटेबल लगी। पॉल ने लोगों से कहा कि जीसस ने अपनी जान की कुर्बानी इंसानियत के गुनाहों की माफी के लिए दी है, बल्कि हमें तो इनकी इस कुर्बानी को मानना है। यानी कि इस इंसान ने क्रिश्चियनिटी को ही बदल दिया था और बाइबल में अपने इन कॉन्सेप्ट्स को ऐड करवाया। लेकिन जेरूसलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ फॉलोअर्स ने पॉल के इन आइडियाज को रिजेक्ट किया और उन्हें अल्लाह का एक नबी ही माना। इन्हीं लोगों में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भाई भी थे। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और पॉल की इस नई क्रिश्चियनिटी को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक बाइबल को एक बुक की शक्ल दे दी गई थी। वफात के 40 से 80 साल बाद लिखा गया था और इसके 4 गॉस्पल्स थे, मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन। इन चारों गॉस्पल्स में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक दूसरे से डिफरेंट बातें लिखी थी, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कही। कि मुझे जैसे मुर्दों को जिंदा करना, परिंदों में रूह डालना, इन्हें अल्लाह का बेटा प्रूव करने के लिए दलील के तौर पर यूज किया जाने लगा, जबकि ये तो मुजज़े उन्हें अल्लाह की तरफ से दिए गए थे। कई पुरानी गॉस्पल्स भी मौजूद थी, जैसे कि गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ बारनबास, गॉस्पल ऑफ हिब्रूज। लेकिन उन गॉस्पल्स को चर्च के लीडर्स ने गलत कहा और इन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अभी सारे क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर का बादशाह बना। इस वक्त इसकी पूरी एम्पायर पॉलिटिक्स और रिलीजन की वजह से आपस में ही डिवाइड हो चुकी थी। तो इसने अपनी पूरी एम्पायर को यूनाइट करने के लिए लोगों को आजादी दे दी कि वो अपने रिलीजन को ओपनली फॉलो कर सकते हैं, जिसे लोग आजादी से फॉलो कर सकते थे। इससे पहले लोग क्रिश्चियंस पर जुल्म करते थे। इस वक्त क्रिश्चियनिटी के 2 फिरके थे, एक जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, दूसरे जो इन्हें खुदा का बेटा मानते थे, जिसका नाम था एरियस, जो कि लोगों को बताने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, न कि उनके बेटे। लेकिन उस वक्त के चर्च के लीडर्स ने इसकी सख्त मुखालफत की, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे, और लोग एक दूसरे की मुखालफत करने लगे। जब कॉन्स्टेंटीन को यह पता चला तो इसने इस इश्यू को फौरन हल करने का सोचा। तो रिलीजन फॉलो करने की आजादी दी थी, लेकिन अब तो और ज्यादा इश्यूज आने लग गए थे। तो कॉन्स्टेंटीन ने एक बड़ी
काउंसिल बुलाई जिसमें 300 से भी ज्यादा प्रीस्ट आए। एक मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में एरियस के इस आइडिया को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद से जो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानता था और उन्हें मार दिया जाता था। इससे पूरी एम्पायर में एक ही क्रिश्चियनिटी कायम हुई। वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे। इस वक्त तक बाइबल के कई वर्जन्स मौजूद थे, लेकिन चर्च को कोई एक बाइबल चाहिए थी। तो चर्च की काउंसिल ने 27 मुख्तलिफ बाइबल्स के वर्जन सिलेक्ट किए, जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बताया गया था। इसी वजह से आज बाइबल के कुछ ही पुराने वर्जन्स हैं नबी बताया गया है। फिर जब बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया तो बाइबल का वो वर्जन रोमन कैथोलिक चर्च में ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया कि मक्का में एक नबी आए हैं, तो नजरान के कुछ क्रिश्चियन प्रीस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने कुरान की आयत पेश की, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपने घर वालों को ले आएं और ये अपने घर वालों को फिर एक खुले मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें। जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल होगी और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ इमाम अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आए। तो इनमें से एक प्रीस्ट ने कहा, खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा। इनसे डिबेट मत करो वरना हम तबाह हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डर के मारे अग्रीमेंट कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश यहूदियों की सबसे बड़ी गलती थी। यहूदियों के लिए आखिरी मौका थे। अल्लाह ने उन्हें खुले मुजज़ों के साथ इनके पास भेजा था। ऐसे मुजज़े किसी भी नबी को नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ईमान लाने की बजाय इनकार कर दिया। एक अजाब नाजिल किया जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि यहूदी खुद हुकूमत हासिल करना चाहते थे। यहूदियों ने यरूशलेम में रोमन्स को हराकर आजादी हासिल कर ली। जब उस वक्त के रोमन बादशाह नीरो को ये खबर मिली, टाइटस ने यरूशलेम को सीज कर लिया और शहर को फतह कर लिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों के टेम्पल को तबाह कर दिया और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था, जो आज भी बाइबल में लिखा है। जब टेम्पल तबाह कर दिया गया तो इसकी एक दीवार बाकी रह गई जो आज तक मौजूद है, जिसे यहूदी चूमते हैं। यही वो वेस्टर्न वॉल है। हजारों यहूदियों को गुलाम बना लिया गया और आखिरकार इन्हें यरूशलेम से निकाल दिया गया, जिसके बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। इस वक्त यहूदी अब भी रोमन एम्पायर के अंडर थे। फिर एक दिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझते थे। और ये दुश्मनी सदियों तक जारी रही। यहूदियों पर जुल्म होते रहे। फिर 15th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का सबसे बड़ा चर्च बन गया। इसी वजह से स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी यहूदियों को निकाल दिया गया। इन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी कबूल करने पर मजबूर किया गया। इन्हें बड़ी पोस्ट्स पर जॉब्स भी नहीं दी जाती और इन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। ये सब तकरीबन 1000 साल तक चलता रहा। फिर वर्ल्ड वार 2 हुई, जिसमें नाज़ियों ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया और उन पर बहुत जुल्म हुआ। ये सब देखकर क्रिश्चियंस को यहूदियों पर तरस आने लगा और वो अपने चर्चेज में यहूदियों के हक में आवाज उठाने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के लिए जरूरी है कि यहूदी यरूशलेम में अपना 3rd टेम्पल बनाएं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3rd टेम्पल बनने के बाद ही इस दुनिया में आएंगे। क्रिश्चियंस ने भी यहूदियों के लिए अलग कंट्री बनाने को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इजराइल कायम हुआ। आज यहूदियों की तमाम साजिशों में क्रिश्चियंस का बड़ा हाथ है और क़यामत के दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ अल्लाह के सिवा माबूद हैं? ऐ अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अगर मैंने कहा होता हो तो तू जानता है। जब तक मैं इनके दरमियान था मैं इन पर गवाह था, अब तू ही इन पर गवाह है।